کراچی کے اساتذہ سڑکوں پر آ گئے، ٹائم اسکیل دینے کا مطالبہ۔ شاہین کمپلیکس کے قریب دھرنا دیا، مظاہرین نے ریڈ زون جانے کی کوشش کی تو پولیس حرکت میں آ گئی۔ پی آئی ڈی سی کے قریب لاٹھی چارج، خواتین سمیت درجنوں مظاہرین کو دھر لیا۔ پرامن ٹیچرز کے ساتھ اہلکاروں نے بدتمیزی کی، خاتون پروفیسر پھٹ پڑی۔ یہ جو ان کو لے کر جا رہے ہیں جیسے ہم لوگ کوئی ٹیررسٹ ہیں، ہم لوگ کوئی دہشت گرد ہیں۔ ہم نے بیریئرز بھی کراس نہیں کیے، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، نمازیوں کو لاٹھی چارج کر کے گاڑی میں ڈالا گیا۔ یہ انتہائی شرمناک عمل ہے۔ کراچی میں اساتذہ تو لاہور میں نابینا افراد پولیس کے رویے کا شکار۔ مال روڈ پر احتجاج کرتے نابینا افراد مطالبات لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے پہنچے تو پولیس دیوار بن گئی۔ معصوم مظاہرین کے ساتھ ہاتھا پائی، نابینا افراد کو آگے جانے سے روک دیا۔ ان کا تو ادھر پا دکھائے، بیریئر ٹوٹے، جو لاٹھیاں انہوں نے ماری ہیں، ہمارے نابینا افراد زخمی ہو چکے ہیں، پاؤں سے، ہاتھ سے۔ اللہ کا خوف سے ڈرو، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، غرق ہو جاؤ گے۔ زبردستی کری، ہمیں دھکے لگائے، پھر انہوں نے میرا گلا دبا دیا، پھر یہ پاؤں پہ بیریئر لگا، ہاتھ پہ ڈنڈے مارے، کمر میں بھی ڈنڈے مارے۔ فوج ملک کے دفاع میں مصروف ہے، مولانا کے مارچ سے فوج کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا دو ٹوک پیغام، کہا دھرنے کافی عرصے سے ہو رہے ہیں، 2014 کے دھرنے میں بھی فوج نے حکومت وقت کا ساتھ دیا تھا۔ 1 سال میں 3 بجٹ پیش کیے اور 3 بجٹ پیش کر کے بھی یہ محصولات کا ہدف حاصل نہیں کر سکے۔ خدا نہ کرے اگر اگلا بجٹ بھی ان اہلوں کے حوالے ہو گیا تو پاکستان مکمل طور پر بیٹھ جائے گا۔ ملک بچانا ہے تو نااہلوں سے جان چھڑانا ہوگی، مولانا ڈٹ گئے۔ آزادی مارچ جاری رکھنے کا عزم، کہا حکومت گرانا ہمارا قومی فریضہ ہے، نااہلوں کو ایک دن کی بھی مہلت دینے کو تیار نہیں۔ اگر اگلا بجٹ بھی انہوں نے پیش کر دیا تو ہم دیوالیہ ہو جائیں گے۔ مولانا کا 12 ربیع الاول پر دھرنے کو سیرت طیبہ کانفرنس میں تبدیل کرنے کا اعلان۔ ایک ایسا مارچ جس کو نام آزادی کا دیا گیا لیکن وہ یرغمالی مارچ بن گیا۔ مولانا صاحب کا پہلے دن سے کوئی ایسا مطالبہ سامنے آیا ہی نہیں جس کو حکومت سیریس انداز سے ڈیبیٹ کرے۔ ایک طرف آزادی مارچ کا بھونچال، دوسری طرف حکومتی رویہ جارحانہ۔ فردوس عاشق آوان کے کرارے وار جاری، کہا آزادی مارچ اب یرغمالی مارچ بن چکا ہے۔ مولانا کے مطالبات غیر سنجیدہ قرار دے دیے، واضح کر دیا امن کو کسی کی خواہشات کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیں گے۔ سینٹ اجلاس میں آزادی مارچ کی بازگشت، غفور حیدری نے خوب تانے مارے، کہا 11 روز سے ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، پی ٹی آئی کے دھرنے میں پارلیمنٹ پر حملہ کیا گیا تھا۔ غفور حیدری کے بیان پر حکومتی اراکین سیخ پا، مراد سعید بولے یہ اسلام کارڈ استعمال کر رہے ہیں۔ فیصل جاوید نے بلاور پر انگلی اٹھائی تو مولا بخش ٹانڈیو جلال میں آ گئے، اسپیکر سے فیصل جاوید کو باہر بھیجنے کا مطالبہ۔ آزادی مارچ ختم کرانے کے لیے حکومت متحرک، رہبر کمیٹی سے مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ۔ چودھری برادران بھی سرگرم، پرویز الہی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، کہتے ہیں پیش رفت ہو رہی ہے، جلد معاملات کا حل نکل آئے گا۔ وزیر اعظم کے استعفے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وزیر اطلاعات پنجاب میاں اسلم اقبال کی آج نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا شہباز شریف آصف زرداری کے ساتھ مل کر حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں مگر یہ ہو نہیں سکتا، مولانا سے مذاکرات ہو رہے ہیں، اچھے نتائج نکلیں گے۔ اسلام آباد میں بارش، ہواؤں سے آزادی مارچ کے خیمے اکھڑ گئے، مظاہرین کو مشکلات کا سامنا۔ خزدار کے مولوی سیف دل کا دورہ پڑنے سے چل بسے، اموات 3 ہو گئیں، کپتان کی ہدایت پر دھرنے کے مقام پر صفائی کا کام جاری، ایمبولینس اور میڈیکل کی سہولت بھی فراہم۔ ہم
बात चीत के लिए तैयार हैं। असल मामला इलेक्शन के इनेकाद का है। शफकत महमूद की आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू, कहा इलेक्शन को जांचने का जो तरीका है वो बता दें। जब तक मुआहदे के दायरे में बात रहेगी हमें कोई मसला नहीं होगा। नवाज शरीफ का इलाज उन्हीं की रिहाइशगाह पर होगा। साबिक वजीर आजम सर्विसेज अस्पताल से जाती उम्रा पहुंच गए। घर में ICU कायम, वेंटिलेटर और कार्डिक की सहूलत भी मौजूद। डॉक्टर्स भी 24 घंटे साथ रहेंगे। सर्विसेज अस्पताल का मेडिकल बोर्ड तहलील मरियम नवाज के रोककार जारी। घर पर वालिद की तीमारदारी करेंगी। साबिक सदर की सेहत पर पीपल्स पार्टी को तशवीश, जरदारी के इलाज के लिए निजी मेडिकल बोर्ड बनाने का मुतालबा। जेल हुक्काम को खत लिख दिया। बिलावल भुट्टो भी बोल पड़े, कहा जरदारी बीमार हैं, उन्हें बेगुनाह जेल में रखा हुआ है। पीपल्स पार्टी ने मामला सेनेट में भी उठा दिया। माहौलियात का तहफ्फुज दीनी फरीजा है। आइंदा नस्लों का एहसास करके फैसले करना होंगे। वजीर आजम का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पहली बार बिलियन ट्री मंसूबा शुरू किया। माजी में शहर बसाने के बजाय इमारतों की तामीर की मंजूरी दी गई। ताकत क्या होती है दुश्मन देख ले। शाहीनों ने सोनमियानी फायरिंग रेंज कराची में दुनिया को दंग कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का शानदार मुजाहिरा। लड़ाका तैयारों ने अहदाफ के पर खचे उड़ा दिए। आवेजा, करतारपुर राहदारी खोलने पर खिराज तहसीन। पोस्टर में सिद्धू की भी तस्वीर, मगर मोदी सरकार का तासुब। करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए नवजोत सिंह सिद्धू को ताहाल इजाजत नहीं दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से GHQ में सऊदी अरब के नायब वजीर दिफा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक सऊदी दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सानिया तेजगाम, जहां बहाक 42 अफराद की शनाख्त हो गई। शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान में कैंप कायम। लाशें वर्सा के हवाले की जाने लगी। 3 मैयतें कंदकोट भिजवा दी गईं। 3 का ताल्लुक मीरपुर खास से है। वर्सा का एहतजाज, बाक़ियात जल्द देने का मुतालबा। हौलनाक साने में 76 अफराद लुक़्मा अजल बने थे। जली हुई बोगियां आज तक कर्बनाक दास्तान बयान कर रही हैं। शहर कायद के खुले रेलवे ट्रैक शहरियों के लिए बड़ा रिस्क। कराची का नौजवान बाल बाल बचा। बलोच कॉलोनी के रेलवे ट्रैक से पैदल मोटरसाइकिल उबूर करने की कोशिश। पटरी उबूर करने के दौरान ट्रेन आ गई। नौजवान ने भागकर जान बचाई। ट्रेन बाइक को कुचलती हुई चली गई। कसूर में बेकसूर बच्चों की गुमशुदगी का सिलसिला ना थम सका। थाना सदर की हुदूद से 8 साला तैयबा लापता। बच्ची मदरसे गई थी लेकिन घर ना लौटी। वालिदैन गम से निढाल। मुकदमा दर्ज, पुलिस की तहकीकात जारी। सियासत के मैदान में फिर पीपल्स पार्टी का इम्तिहान। दादू में PS 86 का ज़िमनी इंतखाब कल सजेगा। पीपल्स पार्टी के सैयद सोले शाह का मुकाबला PTI के इमदाद अली से होगा। हल्के में 158 पोलिंग स्टेशंस कायम। पोलिंग स्टाफ को बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर्स जारी। जिला भर में आम तातील का ऐलान। लाजवाब सर्विस में बाकमाल चोर। PIA की परवाज के दौरान मुसाफिर खातून की जानिब से चोरी की शिकायत। तफ्तीश के बाद PIA के 5 मुलाजिम गिरफ्तार। 90,000 रुपए मालियत की चोरी शुदा अशिया बरामद। बाला इलाकों का हुस्न दोबाला। कोहसारों ने पहन ली बर्फ की माला। महासेरा में बर्फबारी। अशेरी दरा, कमराट और लोआरी टॉप भी बर्फ से ढक गए। काला, महूडन, शाहीबाग और ओशो में भी बर्फ के गाले। स्वात और दीरबाला में बरसात ने ठंड बढ़ा दी। कराची समेत मुल्क भर में चुप ताजिए के जुलूस बरामद। सख्त सिक्योरिटी, जुलूस के रूट पर मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल रही। मुल्क भर में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियों में मसरूफ। मुल्तान में मस्जिद नबवी से मुशाबियत रखने वाली जामे मस्जिद तवज्जो का मरकज बन गई।
बरसा दी। खवातीन प्रोफेसर्स को भी न बख्शा गया। 50 से ज्यादा असातिज़ा को हिरासत में ले लिया। असातिज़ा टाइम स्केल के मुतालबे पर एहतजाज कर रहे थे। इस हवाले से देखिए। भरी असातिज़ा हक मनवाने सड़क पर निकले तो लेने के देने पड़ गए। सिंध कॉलेज के प्रोफेसर्स का मुतालबा था उन्हें टाइम स्केल और प्रमोशन दिया जाए। हम बिल्कुल जो है जिस इरादे से आए हैं कि हमें टिल जो है इश्यूएंस ऑफ नोटिफिकेशन रिजेक्ट करते हैं और ये प्रोग्राम के मुताबिक जो हमारा प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा। यही नारे लगाते असातिज़ा ने PIDC पर धरना दे दिया। सूबाई वजीर इस्माइल राहू भी धरना मुजाहिरीन को मनाने पहुंचे। हम लोग चाह रहे हैं कि ये मसाइल उस असातिज़ा के जो है वो हल हो जाए और मैं इनको भी गुजारिश करूंगा कि ये उस कमेटी के साथ बैठे। लेकिन इंतजामिया को सबक सिखाने असातिज़ा ने एक न मानी। वजीर हाउस जाने के लिए रेड जोन दाखिले की ठानी, लेकिन खुद इंतजामिया ने आलिफ से असातिज़ा को बे से बद इंतजामी का पे से पढ़ाया वो सबक कि फिर असातिज़ा की दौड़े लग गईं। मर्द और खवातीन असातिज़ा को धर लिया। गिरफ्तार असातिज़ा को सिविल लाइन थाने मुंतकिल कर दिया। असातिज़ा ने पुलिस की मारपीट पर गम और गुस्से का इजहार किया। ये जो उनको लेकर जा रहे हैं जैसे हम लोग कोई टेररिस्ट हैं, हम लोग कोई दहशतगर्द हैं। हमने बैरियर्स भी क्रॉस नहीं किए। लोग नमाज पढ़ रहे थे, नमाजियों को लाठीचार्ज करके गाड़ी में डाला गया। ये इंतहाई शर्मनाक अमल है। पुलिस की मारपीट के बाद असातिज़ा ने प्रेस क्लब का रुख कर लिया। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। असातिज़ा का एहतजाज अब भी जारी है। मुजाहिरीन प्रेस क्लब के बाहर धरना देकर बैठ चुके हैं। अपडेट लेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे शहरियार साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार बताइएगा। मेरा टीचर भी मौजूद है और इनसे पूछते हैं कि अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। हमारा एक ही 1 पॉइंट एजेंडा था, टाइम स्केल। 10 साल हो गए हैं, हमारी ये डिमांड गवर्नमेंट पूरी नहीं कर रही। ठीक है, सिंध हुकूमत की तरफ से कोई आया यहाँ पर? जी अभी तक तो कोई ऐसा पॉजिटिव वे नहीं आया हमारे पास। कोई भी इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी हमें ना दी गई, ना हमसे पूछा गया। हमने बार बार हमारे बड़े भी गए वहाँ पे बात की, लेकिन कोई भी पॉजिटिव हमें आंसर नहीं मिला अभी तक। असातिज़ा का एहतजाज इसी पर है कि टाइम स्केल को जो है वो बढ़ाया जाए और जब तक ये नहीं बढ़ेगा तो ये धरने के ऊपर जो है वो बैठे रहेंगे और इनका एहतजाज जो है वो बरकरार रहेगा। जी। कराची के बाद लाहौर में भी नाबीना अफराद पर पुलिस ने धावा बोल दिया। सरकारी नौकरियों के हुसूल के लिए सरापा एहतजाज बसारत से महरूम अफराद ने माल रोड पर एहतजाज किया तो पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ मुजाहिरीन ने एहतजाज धरने में बदल दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे गजनफर खान से। जी गजनफर, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, नबीना अफराद 3 रोज से अपने मुतालबात के हक के लिए जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट का मेन एंट्रेंस है और यहाँ पर ये नबीना अफराद अपना धरना दिए हुए थे और अपना धरने का दायराकार वसी करने के लिए नबीना अफराद ने जो है वो माल रोड पर आने का जो है वो इरादा किया, जिस पर पुलिस और नबीना अफराद में जो है वो तसादम शुरू हुआ और इस तसादम के नतीजे में एक पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हुआ है। जब तक वो ये हुकूमत उनके मुतालबात मंजूर नहीं करती वो धरना खत्म नहीं करेंगे। जी। लाहौर में पुलिस तशद्दुद का शिकार नाबीना अफराद इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। बोले कि ये लोग अल्लाह के कहर से डरें, जो तशद्दुद किया गया है इसका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। इनका दूधरपा दिखाए, बैरियर टूटे, जो लाठी उन्होंने मारी है हमारे नबीना अफराद जख्मी हो चुके हैं पाँव से हाथ से। अल्लाह का खौफ से डरो, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, गर्क हो जाओगे। जबरदस्ती करी, हमें धक्के लगाए, फिर इन्होंने मेरा गला दबा दिया, फिर ये पाँव पे बैरियर लगा, हाथ पे डंडे मारे, कमर में भी डंडे मारे। अब आपको बताएं कि मौलाना के मार्च से फौज का कोई लेना देना नहीं। DGI-SPR ने साफ साफ बता दिया। कहते हैं कि 2014 के धरने में भी फौज ने हुकूमत वक्त का ही साथ दिया था। फौज हुकूमती अहकामात पर अमल करती है, खुद को किसी चीज में मुलविस नहीं करती। उनका कहना था कि जिस दिन हुकूमत वक्त फौज को इलेक्शन के लिए नहीं बुलाएगी फौज नहीं जाएगी। इसीलिए आर्मी चीफ ने तजवीज दी थी कि एक कमेटी बना लें जो मुल्क के लिए बेहतर लाहे अमल तय करे। मजीद उन्होंने कहा कि मैं जो भी बात करता हूँ इदारे की जानिब से करता हूँ, इसमें जाती राय नहीं होती है। तो आपको बताएं कि DGI-SPR ने साफ साफ बता दिया है कि मौलाना के मार्च से फौज का कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं कि 2014 के धरने में भी फौज ने हुकूमत वक्त का ही साथ दिया था। फौज हुकूमती अहकामात पर अमल करती है, खुद को किसी चीज में मुलविस नहीं करती है। उनका कहना था कि जिस दिन हुकूमत वक्त फौज को इलेक्शन के लिए नहीं बुलाएगी फौज नहीं जाएगी। इसलिए आर्मी चीफ ने तजवीज दी थी कि एक कमेटी बनाएं जो मुल्क के लिए बेहतर लाहे अमल तय करे। मैं जो भी बात करता हूं इदारे की जानिब से ही करता हूं, इसमें जाती राय नहीं होती।
जो 2014 का धरना था, उस वक्त भी फौज ने हुकूमत वक्त का साथ दिया था और एक इंस्टीट्यूशन होने की हैसियत से सिक्योरिटी के लिए या जो हमारे जरूरी इमारतें होती हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो भी हुकूमत ने टास्क दिया था वो फौज ने उस वक्त भी पूरा किया था। फौज जो है वो हुकूमत के ऑर्डर्स के ऊपर अमल करती है। इलेक्शन में फौज का कोई किरदार है नहीं, लेकिन जितने पाकिस्तान की हिस्ट्री में इलेक्शन हुए हैं या जो भी जब भी आर्मी को इन एड ऑफ सिविल पावर बुलाया जाता है, ख्वाह वो नेशनल क्लेमिटी हो, इलेक्शन हो या किसी भी किस्म का कोई काम हो, फौज उस वक्त आती है किसी भी काम में इन एड ऑफ सिविल पावर जब उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिक्विजिशन किया जाता है। हुकूमत गिराना कौमी फरीजा बन चुका है। मौलाना फजल रहमान का आज़ादी मार्च की शुरका से धुआंधार खिताब। कहा, मुल्क बचाने के लिए हुक्मरानों को मजीद वक्त नहीं दे सकते, इन्हें जितने दिन देंगे तो मुल्क इसी हिसाब से गिरता जाएगा। अगर इन्हें अगला बजट पेश करने दिया तो मुल्क इक्तिसादी तौर पर बैठ जाएगा। मुल्क में अदल इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं। हुकूमत के एहतिसाब के लिए नैब बेबस है। क्या इस हुकूमत को गिराना आज हमारा कौमी फरीजा नहीं है? हम एक कौमी फरीजे को अदा करने के लिए निकले हैं। अगर मुल्क को बचाना है तो फिर इन नाअहल हुक्मरानों को एक दिन भी मजीद देने के लिए तैयार नहीं हो सकते। जितने दिन उनको मिलेंगे रोजमर्रा के हिसाब से नीचे गिरते चले जाएंगे। अगर अगला बजट भी इन नाअहलों के हवाले हो गया, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर बैठ जाएगा। यहाँ अदल इंसाफ नहीं और के लिए नेब भी बेबस नजर आए। जब रात को बारिश बरस रही थी और आप खुले आसमान तले इस्तिकामत का पहाड़ बने हुए थे, 12 रबीउल अव्वल को इस आजादी मार्च को हम सीरत तैयबा कॉन्फ्रेंस में तब्दील कर देंगे। मौलाना फजल रहमान का कोई मुतालबा संजीदा नहीं। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात बरस पड़ी, कहती हैं कि आज़ादी मार्च अब यरगमाली मार्च बन चुका है। नूरुल हक कादरी बोले, चाहते हैं आज़ादी मार्च पुरअमन तरीके से खत्म हो। आज़ादी मार्च से हुकूमत का बुरा हाल। बुज़रा की लफ्जी गोलाबारी तेज से तेज तर। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकावान ने आज़ादी मार्च को नया नाम दे दिया। एक ऐसा मार्च जिसको नाम आज़ादी का दिया गया लेकिन वो यरगमाली मार्च बन गया। मौलाना साहब का पहले दिन से कोई ऐसा मुतालबा सामने आया ही नहीं जिसको हुकूमत सीरियस अंदाज से डिबेट करे। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर बोले, बेबुनियाद प्रोपेगेंडे पर अवाम को इस्लामाबाद में जमा किया गया। मूसे रिसालत और खत्म नबूवत की बात आएगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर अव्वल दस्ते की सूरत में उसका दिफा करेगी। इजराइल जुल्म, जबर और सितम डानी वाली गासिब रियासत है, किसी सूरत उसको तस्लीम नहीं किया जाता। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इत्तलात ने इस्तीफे के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम का इस्तीफा किसी सूरत मुमकिन नहीं। इमरान खान एटमी पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, उनको कोई माई का लाल इस तरह धमकी नहीं दे सकता। वुज़रा एक जानिब तंज के तीर चला रहे हैं तो दूसरी तरफ मामलात के पुरअमन हल के लिए भी पुरुमीद हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। हुकूमती कमेटी और रहबर कमेटी के मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ हम जानेंगे। इस्लामाबाद से आज न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर ने हमें ज्वाइन किया है। नवीद, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी का अहम इजलास आज स्पीकर हाउस में मुनक्कद हुआ है। इस मौके पर अब तक की जो पेशरफ्त है उसका जायजा लिया गया है। चौधरी परवेज़ इलाही जो पंजाब असम्बली के स्पीकर है, उन्होंने मौलाना फजल रहमान से अपनी मुलाकात का अहवाल बताया है। इसके मौके पर जो मौलाना के मुतालबात थे वो कमेटी के सामने रखे, जबकि कमेटी ने यह फैसला किया कि आइंदा 24 घंटों में ये मामलात को मजीद तेज किया जाएगा। कमेटी के अरकान वज़ीर आज़म से भी मिलेंगे, वज़ीर आज़म को भी सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि जितनी जल्द हो सके ये आज़ादी मार्च का जो मसला है इसको हल किया जाए और मौलाना फजल रहमान को इस बात पर आमादा किया जाए कि आज़ादी मार्च खत्म कर दे। मौलाना को मनाने के लिए हुकूमत के इत्तेहादी भी मैदान में आ गए। चौधरी बरादरान और फजल रहमान की 48 घंटों में 3 मुलाकातें हुई। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। मामले को पुरअमन अंदाज में निपटाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर ही ज़ेरे गौर हैं। पेशरफ्त हो रही है और कई चीज़ें चल रही हैं साथ साथ, और दुआ करें इंशाअल्लाह बेहतर होगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा सब्र और मेहनत की ज़रूरत है, वो हो रही है। हमारा मकसद जब एक है और उसको इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी, लेकिन टाइम लगता है।
سینٹ کے ٹھنڈے ٹھار ایوان میں اراکین کا طوفان، ایک دوسرے پر طنز کے خوب تیر برسائے۔ حکومتی اور اپوزیشن اراکین ایک دوسرے سے الجھتے رہے، بیبی کے جملے سے بھی ایوان گونجتا رہا۔ کہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے سم کارڈ کھیلتے ہیں، کوئی یہاں پہ آ کے کوئی اور کارڈ کھیلتا ہے، کوئی مذہب کا کارڈ استعمال کرتا ہے۔ میں جب ان کو آئینہ دکھاتا ہوں تو وہ برا لگتا ہے ان کو، جنہوں نے پارلیمنٹ کا تقدس پامال کیا اور عمران نے سول نافرمانی کا اعلان کیا۔ یہ ملبہ ہے 30 سال کا جسے عمران خان صاحب صاف کر رہے ہیں۔ یہ جو سارے کیسز ہیں یہ عمران خان نے تو نہیں بنائے، ان پہ نیب کے سامنے تو ہمارے لوگ بھی گئے ہیں۔ اب اس کو روکیں گے، ہم اٹھا کے پھینکیں گے، پلیز ہم اٹھا کے پھینکیں گے، پلیز آپ کو بولیں گے ہم اٹھائیں گے ان کو۔ آپ تقریر سٹارٹ کریں، آپ بلاول کے جوتے جیسے نہیں تقریر کریں پلیز، آپ بلاول کے جوتے جیسے نہیں آپ بیٹھ جائیں۔ یہ دوسرا فواد چودھری پیدا ہوا ہے ان کی حکومت میں۔ کچھ بھی ہو جائے وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیں گے، وزیر اطلاعات پنجاب نے صاف صاف بتا دیا۔ آج نیوز سے خصوصی گفتگو میں میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ میاں صاحب ہم سے ریلیف کی امید نہ رکھیں اور قوم کی لوٹی دولت واپس کریں۔ استعفے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، نئے الیکشن کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جو نیب جانے وہ کورٹ جانے۔ نیب نے کیس کیے، کورٹ میں پریزنٹ ہوئے، کورٹ نے فیصلہ کیا کسی کی ضمانت ہونی چاہیے، کسی کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے، کورٹ کا پروگیٹو ہے۔ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، اس ملک کی عوام کا پیسہ کھایا ہے، ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی رحم نہیں ہے۔ ہمارا جو سٹانس ہے کہ ہم نے وہ لوٹی دولت واپس لانی ہے۔ اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ ہونے والی بارش نے دھرنا مظاہرین کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر CDA اور مقامی انتظامیہ مدد کو پہنچے، جلسہ گاہ کو صاف کیا۔